आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पेमेंट टू एमएसएमई क्रिएटर्स। और काफी बज़वर्ड है, लोगों में काफी इसको लेकर चिंता है या घबराहट है कि क्या है प्रोविजन और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B(H). सो सबसे पहले बिफोर टू अंडरस्टैंड 43B(H) we have to understand MSMED Act of 2006 and what this act says। पहले ही इसको हम समझ लेंगे तो 43B(H) समझने में हमको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले MSMED एक्ट कोई नया नहीं है, ये करीब करीब 18 साल पुराना एक्ट है, 2006 में आया था। और इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम, उनको कुछ बेनिफिट्स देना चाहती थी। तो इसके लिए प्रोविजंस किए। दे सेड कि यू रजिस्टर योरसेल्फ। पहले हम अलग इसमें करते थे, अभी उद्यम में हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो देयर आर 3 काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। वन इज माइक्रो, वन इज स्मॉल, वन इज मीडियम। एंड हु इज कॉल्ड टू बी माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन इज whose investment in plant and machinery is less than 1 crore and whose turnover is less than 5 crore. So let's understand, if somebody's investment in plant and machinery is say 50 lakh, but if his turnover is say 20 crore, so then he will not be micro because he is fulfilling only one condition, he is not fulfilling both conditions. So the investment has to be less than 1 crore, turnover has to be less than 5 crore to be a micro. In case of small, the turnover is less than 50 crore, investment is less than 10 crore. In case of medium enterprise, turnover is less than 250 crore, investment is less than 50 crore. When we consider investment, the investment in plant and machinery or equipment. Now, when we consider this investment, it is not as per cost, it has to be as per written down value, as per income tax. Suppose if we have to consider that my condition as on 1st April 24, whether I fall in micro, small or medium. So what was my investment on 31st March 23 as per written down value under income tax, and my turnover. And turnover will not include exports. In the basis of this, it will be decided whether I am a micro, small or medium. So once we know the person with whom we are dealing, whether he is a micro, registered under MSME, or as a small or as a medium, this will help us. Because in case of medium enterprises, registered as medium enterprises, we will not be required to make payment under section 43B(H) before 31st March 2024. Now this has to be every year criteria. So the people who are registering, they have to कैसे नहीं होगा, जूम में थोड़ी है वो लिंक पे जाके क्लिक करना खाली। Sushri, can you mute yourself? So what is important with the registration? How it is done. Now, second part is what is MSME Act says. Second part is MSME Act. What MSME Act says. So what is MSME Act says that anybody who is registered in MSME Act, he will get payment. Government wants to protect small enterprises. So for the benefit of those small enterprises who are registered under this act, for them government have said
इनको पेमेंट जल्दी मिलना चाहिए, टाइम से पेमेंट मिलना चाहिए। जो बड़े लोग हैं या जो भी लोग अपना पावर यूज करके, इन्फ्लुएंस यूज करके उनको पेमेंट टाइमली नहीं देते हैं, तो उनको टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया। एंड दिस प्रोविजन इज नॉट न्यू, दिस प्रोविजन इज सिंस डिकेड्स, अभी 15 साल से भी ज्यादा हो गए। एंड दिस प्रोविजन सेज that anybody who is registered in MSME, he should get payment within the time as per written agreement, but the written agreement cannot exceed 45 days. So suppose मैंने किसी से कुछ परचेज किया है और वो MSME में रजिस्टर्ड है, तो उस व्यक्ति को जो मुझे पेमेंट देना है, यदि मैंने उससे एग्री करवा लिया कि मैं तुमको 6 महीने में पेमेंट दूंगा, तो एक्ट सेज नो, you have to make payment within 45 days. The agreement cannot exceed 45 days. So even though we have an understanding with our supplier that we will make payment say in 60 days, 90 days, 180 days, Act says no. The written agreement, even if it is there, it cannot exceed 45 days. So if written agreement is for 30 days, then 30 days. But anyway, cannot exceed 45 days. And in case if there is no such written agreement, then the payment has to be made within 15 days. This is what the Act says. So how do we know whether there is written agreement or not? So many times we don't enter into written agreement, etc. We just order on phone, we issue purchase order, we receive bills, etc. So written agreement could be by way of even purchase order. Purchase order जब भी हमने दिया तो उसमें हम लिख दिए कि भाई आपको हम लोग पेमेंट 40 days में करेंगे, 45 days में करेंगे, 60 days में करेंगे. That is written agreement. Or when the party is issuing bill, party says that payment is due within a period of 90 days, then that becomes the written agreement. Again, even though in bill it has been mentioned payment has to be made within 90 days, still it has to be made within 45 days. Now, this MSME Act, to make it more clear, said that this payment has to be before appointed day. And what is that appointed day? तो उसके लिए वो 45 days और 15 days को उन्होंने appointed day को declare किया. And they have clarified also what is appointed day, which I will speak later on. But यदि ये 15 दिन में या 45 दिन में पेमेंट नहीं दिया, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है कि जो MSME में रजिस्टर्ड कंपनी है वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकती है. And the buyer or the recipient of service has to pay interest 3 times of RBI prescribed rate. The RBI prescribed rate is say 6.75% today. So the party who is purchasing from a company who is registered in MSME or taking service from someone who is registered in MSME has to make payment within 15 days or 45 days. And if the payment is not made within that period, the supplier of goods, the supplier of services is entitled to receive interest 6.75 into 3 means almost 20%. And that too, it has to be compound interest, which will be based on monthly rest. So suppose there is a purchase of 1 crore. I'm liable to pay, say, 18 or 20% interest. That too calculated every month, 20% per annum, but calculated every month, compounding every month. And again, every month you have to, not annually compounding, monthly compounding. And further, the government says, this act says that this interest paid by the buyer or the recipient of service will not get deduction for this interest. Such a harsh provision is there since decades, but in practice, it has not come. No supplier or goods person who is giving goods is asking for such kind of interest, though there is a provision in income tax in MSME Act. So what happened? The government understood कि हमने प्रोविजन लाया, लेकिन इस प्रोविजन को प्रैक्टिस में कोई फॉलो नहीं करते हैं. हाँ, यदि किसी ने प्रोविजन किया कि मुझे इंटरेस्ट देना है, तो उसको इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा. ये बात हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं. लेकिन हम लोग भी ऑडिट में ये नहीं बोलते कि इसने पेमेंट नहीं किया, इसका इंटरेस्ट लायबिलिटी है, क्योंकि वो प्रोविजन नहीं पूछता. वो बोलते हैं कि प्रोविजन आपने बुक्स में किया तो ही हमको ऑडिट रिपोर्ट में इंफॉर्म करना है. सो दिस इज देयर द लॉ फॉर मोर देन ए डिकेड, बट नोबडी फॉलोज. इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो अब हम इसको दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. So before going to that provision what government has brought,
let's understand what they want to say appointed day. So appointed day is from the day of acceptance. जिस दिन हमने गुड्स को एक्सेप्ट किया उस दिन से 15 दिन, यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो, और यदि कोई एग्रीमेंट है तो 45 दिन, ज्यादा से ज्यादा। यदि एग्रीमेंट 30 दिन का तो 30 दिन, एग्रीमेंट 45 दिन या उससे ज्यादा का तो 45 दिन। तो दिस इज की द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सो नॉर्मली हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जिस दिन बिल आया उस बिल से हमको 15 दिन में या 45 दिन में पेमेंट करना है, बट यदि हम एग्जैक्ट लॉ समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें 15 days or 45 days is not from the date of bill, is from the date of actual delivery of goods. So चालान यदि हम देखेंगे गुड्स की डिलीवरी का चालान, वो सपोज 10 तारीख का है और बिल 15 तारीख को बना, तो हम 10 तारीख से ये 15 दिन 45 दिन काउंट करेंगे। बिल का डेट 15 तारीख है तो उससे काउंट नहीं होना। दिस इज द लॉ। The general understanding of confusion is that it is from the day of bill, which is not true because the word used in MSMED Act is day of acceptance, actual delivery of goods. And if the goods have been received, but there is some objection, कि goods proper नहीं है, quality is inferior, quantity is not proper, pricing is not as understood, there is some objection of the buyer, then the buyer has to, or recipient of service has to raise objection within 15 days of delivery of good or rendering of service. तो जिस दिन आपको सर्विस मिली या गुड्स मिला उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन लेना है। यदि आप 15 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन लेते हो तो जिस दिन वो ऑब्जेक्शन को सप्लायर ने रिमूव किया, दैट डे विल बिकम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस, नॉट टिल दैट डे। So suppose I have rendered some professional services, you wanted some project report from me, I have sent you the project report, but you say this project report is not the way I wanted, it is something different, actually I wanted some different way, then I will rectify that। जिस दिन मैं उसको rectify करता हूँ उस दिन से आपको 15 दिन या 45 दिन काउंट करना है। यदि then they say day of deemed acceptance, so deemed acceptance is the day on which day, यदि समझो हमने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया तो जिस दिन से गुड्स मिला या सर्विसेज मिली उससे 15वां दिन ऑटोमेटिकली इट विल बी डीम्ड दैट यू एक्सेप्टेड द गुड्स और सर्विसेज। So now coming to this provision of 43BH, so we have understood कि MSME Act, तो 43BH को समझने के लिए, the H is small, sorry it's some typing error, it's not capital, it's a small 43BH. So the act says any sum payable by SSE. So ये किसको लागू है? जो लोग बिजनेस कैरी कर रहे हैं, जो सेक्शन 28 में अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में इनकम कैलकुलेट करेंगे, उनको लागू है। सपोज मुझे रेंटल इनकम हो रही है अगेंस्ट सपोज सम फर्नीचर और समथिंग, जो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाता हूँ, जहां पे मैं सेक्शन 57 में एक्सपेंसेस क्लेम करता हूँ, वहां पे ये नियम लागू नहीं होगा। दिस लॉ विल अप्लाई ओनली फॉर सेक्शन 28। जो लोग बिजनेस इनकम दिखाते हैं केवल वहां पर ही ये प्रोविजन लागू होगा। सो एनी सम पेएबल बाय द एसएससी, कौन एसएससी? द वन हु इज कैरिंग बिजनेस, हु इज declaring his income under section 28, and to whom the sum is payable, a micro or small enterprise. So I said there are 3 type of organizations being registered, micro, small and medium. तो अभी यहाँ पे मीडियम को नहीं कवर किया है। जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उन लोगों को कवर नहीं किया। जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, ऐसे लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में, उनको जो पेमेंट करना है विद इन स्पेसिफाइड डेट 15 डेज या 45 डेज में। नाउ इट सेज बियॉन्ड द टाइम लिमिट, यदि वो बियॉन्ड द टाइम लिमिट पे करते हैं, शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम इन दैट प्रीवियस ईयर इन व्हिच सम सेड इज एक्चुअली पेड। तो जिस साल में वो पेमेंट हुआ उस साल में ही वो एक्सपेंस अलाउ होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि मैंने कोई पार्टी से गुड्स रिसीव की मई महीने में, और मई महीने से मैंने उसको 45 दिन में पेमेंट नहीं किया, लेकिन 31 मार्च से पहले पे कर दिया। तो इट सेज कि इट विल बी अलाउड इन दैट प्रीवियस ईयर इन व्हिच सम इज एक्चुअली पेड। सो आई ऑलरेडी पेड बिफोर मार्च 24, सो आई विल बी इंटाइटल्ड इवन दो मेरा बिल मई का था,
मैंने 45 दिन में पे नहीं किया, मैंने 6 महीने में पे किया, या मैंने 8 महीने में पे किया, तो भी मुझे अलाउड होगा, इवन दो आई हैव नॉट फॉलोड एमएसएमई एक्ट का रिक्वायरमेंट की विद इन 15 डेज और विद इन 45 days if there is an agreement. So what it says, it will be allowed in that previous year in which sum is actually paid. So अभी प्रॉब्लम है 31 मार्च 2024 को जो भी सम आउटस्टैंडिंग है उसके लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाता है, वो हमको समझना है. So this law which is we are discussing will be effective from this current financial year for which will be filing return in next year. So 31 मार्च 24 को जो भी हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके लिए प्रोविजन लागू होगा. We'll understand more in detail exactly कैसे लागू होगा. अभी 43B सेक्शन तो पुराना सेक्शन है कि कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्स, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, जैसे सपोज जीएसटी है या पहले हम लोग एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स होता था, इस टाइप की कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो हमको विद इन बिफोर एंड ऑफ द ईयर पे करना था, या बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, whichever is earlier we used to pay. Even बैंक इंटरेस्ट, समझो हमने को बैंक से लोन लेके रखा है, बैंक का इंटरेस्ट पे करना है, so even that 43B says. So there this provision is there for other provisions of salary etc. In case of employees provident fund we have deducted etc. बट सब में ऐसा था कि आप रिटर्न भरने से पहले या रिटर्न की ड्यू डेट से पहले भी भर दिए तो भी आपको 43B का डिडक्शन मिल जाता था. बट दे से कि इन केस ऑफ 43BH देयर इज नो सच प्रोविजन, नो सच अलाउबिलिटी. तो 43BH में क्या बोल रहा है कि आपको ये प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एच में बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप रिटर्न भरने से पहले पेमेंट कर दिए तो चलेगा, नहीं मिलेगा. सो व्हाट दे आर सेइंग कि सपोज आपने कोई गुड्स 30 मार्च को खरीदी, तो 30 मार्च को आपने गुड्स खरीदी तो आपको 30 मार्च से यदि आपका कोई एग्रीमेंट है तो 45 दिन में, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई एक्ट में ड्यू कभी है 15 दिन में या 45 दिन में. तो 30 मार्च को यदि आपने परचेज किया है, आपने सर्विसेज ली है, तो उसकी पेमेंट आपको अप्रैल महीने के 15 दिन या 45 दिन में जब भी आपका डेट आया उस पर्टिकुलर डेट में पेमेंट करना पड़ेगा. तो यदि आपने 45 दिन से पहले, सपोज 15 फरवरी से पहले कोई भी परचेज की है, सर्विसेज ली है, तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको 31 मार्च से पहले पे करना पड़ेगा. लेकिन 15 फरवरी के बाद का जो भी परचेज है और जिसमें एग्रीमेंट है या जिसमें एग्रीमेंट नहीं है, वो 15 मार्च के बाद जो भी हमने परचेज की है गुड्स या सर्विसेज ली हैं, उन सब के लिए हमको फॉर 31 मार्च या एमएसएमई का जो प्रोविजन है कि 15 दिन में पे कीजिए या 45 दिन में पे कीजिए, उस प्रोविजन के तहत पे करना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट पेइंग देन वी विल नॉट बी गेटिंग डिडक्शन इन दिस फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 24-25. सपोज मेरी प्रॉफिट 50 लाख रुपीज है और मैंने 2 करोड़ रुपए का पेमेंट परचेज का नहीं किया विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम. सपोज मैंने जनवरी में परचेज किया था और 31 मार्च को पे नहीं किया, तो ये 2 करोड़ रुपए मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, 50 लाख और 2 करोड़, 2.5 करोड़ विल बी इनकम एंड आई हैव टू पे टैक्स ऑन 2.5 करोड़. तो 2.5 करोड़ रुपए पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. और जब मैं उसका अगले साल में पेमेंट करूंगा तो 2 करोड़ का मुझको डिडक्शन मिलेगा और उस साल में मेरी इनकम लॉस की रिटर्न हो जाएगी. सो यदि सपोज मैंने परचेज किया 20 मार्च को और मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं और 15 दिन में पेमेंट नहीं किया, तो वो भी इनकम मेरा ऐड हो जाएगा. दिस इज द स्पेसिफिक प्रोविजन वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ अभी हम जो चीज को समझे उसमें थोड़ा सा इसको और बेटर वे में समझते हैं कि ये किसको लागू है. सो इफ वी सी द राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इफ वी सी राइट साइड, सो यदि कोई सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमको ये प्रोविजन लागू नहीं होगा. वी नीड नॉट वरी. यदि जो हमारा सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, he has not registered himself in MSME, then we are not liable to make payment as per the provisions of section 43B
स्मॉल एच। दूसरा, यदि कोई मीडियम एंटरप्राइज है, क्योंकि 43H बोल रहा है माइक्रो एंड स्मॉल, सो इफ देयर इज एनी मीडियम एंटरप्राइज तो भी हमको ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। सो आई नीड नॉट वरी टू मेक पेमेंट टू दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, दोज हु आर मीडियम एंटरप्राइज। तो जिस पार्टी से मैंने सर्विसेज लिए या गुड्स परचेज किया, उनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और वो लोग मीडियम एंटरप्राइज में रजिस्टर हैं, उनको भी मुझे पेमेंट नहीं करना। देन एमएसएमई एक्ट बेसिकली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का जो बेसिकली प्रोविजन बना था, वो बना था केवल गुड्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड मीन्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो एएमसी मेंटेनेंस का काम करते हैं या जो दूसरे लोग केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि उनके बेनिफिट के लिए बना था। इट वॉज नॉट फॉर ट्रेडर। फिर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रेशर था पर्टिकुलरली कोविड पीरियड में, कि उन लोगों को जो बैंक से लोन लेना था, तो बैंक वाज गिविंग लोन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, दे वर गिविंग प्रेफरेंस। सो मैनी पीपल वेंट कि हम लोग ट्रेडर हैं, हमको भी बिजनेस में पैसा चाहिए कोविड में, सो बैंक हमको पैसा नहीं दे रही बिकॉज वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। सो गवर्नमेंट सेड कि ओके, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडर्स टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, we will allow them to register as a micro and small enterprise. So they are not falling in definition of enterprise in MSMED Act. उसमें वो enterprise की definition में नहीं cover होते, तो भी गवर्नमेंट ने स्पेशली ट्रेडर्स को रजिस्टर करने का दिया कि आप रजिस्टर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। बट अदर बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए, जैसे कि उनको इंटाइटलमेंट है इंटरेस्ट रिसीव करने का, यदि पेमेंट टाइम से नहीं हुआ तो इंटरेस्ट रिसीव करने का जो बेनिफिट है, वो सब ट्रेडर्स को बेनिफिट नहीं है। सेम वे 43B का बेनिफिट ट्रेडर को नहीं है। सो यदि आपने सर्विस गुड्स परचेज किए ट्रेडर से, तो आपको ये 43B का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सो 43B का प्रोविजन किसको एप्लीकेबल होगा? आपको जिसने गुड्स या सर्विसेज दी है वो रजिस्टर है एमएसएमई में, ए। दूसरा, उसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है, जिस दिन आपने परचेज किया सर्विसेज ली उस दिन उसकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है, बी। और वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है एंड वो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। यदि ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, चारों कंडीशन, कि जिससे आपने सर्विसेज ली या गुड्स ली, वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, जिस दिन उसने सर्विसेज दी उसके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वैलिड है, वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं, वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हैं, केवल उस कंडीशन में ही 43B का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन लागू होगा, अदरवाइज वो प्रोविजन आपको लागू नहीं होगा। तो अभी अपन जो भी डिस्कस किए उसको वापस से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि किस पे लागू होते हैं। सबसे पहला, हमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज ली है, गुड्स परचेज की या सर्विसेज ली। सर्विसेज मतलब जैसे मैंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस है, कंपनी सेक्रेटरी की है, कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट की है, कोई आपने मेंटेनेंस की है, या आपने कोई रिपेयर्स वगैरह का काम किया, दिस आर ऑल सर्विसेज यू हैव रिसीव्ड। तो आपने या तो गुड्स परचेज की या तो सर्विसेज की, उस टाइप के जो भी आपने बेनिफिट्स लिए हैं उसका आपको पेमेंट करना है, प्रोविजन का नहीं है। सपोज 31 मार्च को आप बुक्स में ऑडिट फीस का प्रोविजन करते हो, बट आपकी ऑडिट तो नहीं हुई है। चूंकि आपकी ऑडिट नहीं हुई है, ऑडिट तो आपकी अगले साल में अकाउंट्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद जून जुलाई या मई में होगी। एट दैट टाइम जिस दिन वो ऑडिट कंप्लीट होगी उस दिन ये आपको लागू होगा, नॉट बिफोर दैट। तो प्रोविजंस का पेमेंट नहीं करना है, खाली गुड्स और सर्विसेज का आपको ये देखना है कि गुड्स और सर्विसेज यदि आपने रिसीव कर ली है, कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन आपने जो सामने वाला पर्सन उसने ऑब्जेक्शन क्लोज कर दिया है, उसको रेक्टिफाई कर दिया है, तो आपको पेमेंट करना है। दूसरा, सिंस कैपिटल गुड्स जो हम परचेज करते हैं उसको हम एक्सपेंस में क्लेम नहीं करते, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो यदि हमने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, जैसे सपोज हमने ऑफिस में लगाने के लिए एयर कंडीशनर खरीदा, या हमने कोई कंप्यूटर खरीदा या कार परचेज की, तो ये सब कैपिटल गुड्स हैं। मशीन्स परचेज की, ये हम लोग
एक्सपेंस में क्लेम नहीं कर रहे, तो वो कैपिटल गुड्स, हाँ यदि कोई कार डीलर है और उसने कार बेचने के लिए खरीदी है तो उसकी बिजनेस का पार्ट हो गया। बट यदि हमने अपने जो भी ये परचेज किया है, कैपिटल गुड्स हमने एसेट समझ के जिसपे डेप्रिसिएशन लेंगे, वो परचेज किया है, तो हमको यहाँ पेमेंट की 43B की कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज वी आर नॉट क्लेमिंग दिस एज एन एक्सपेंडिचर। फिर स्पेसिफाइड क्रेडिटर्स, किसको पेमेंट करना जरूरी है? जो लोग एमएसएमई में रजिस्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज हैं, जो लोगों ने गुड्स या सर्विसेज आपको सप्लाई की हैं, जो लोग ट्रेडर नहीं है, यदि ट्रेडर हैं तो उनका पेमेंट नहीं करना है। यदि मीडियम एंटरप्राइज है तो नहीं करना है। एमएसएमई में नहीं करना मतलब पेमेंट तो करना है, लेकिन 43B का प्रोविजन से डर के पेमेंट की सिचुएशन। तो आपने गुड्स सर्विसेज लिए तो नेचुरली यू विल मेक पेमेंट, वी अंडरस्टैंड, बट वी आर सेइंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 43B स्मॉल h। फिर स्पेसिफाइड टाइम, तो वो स्पेसिफाइड टाइम क्या होगा? 15 दिन या 45 दिन। तो 15 दिन यदि आपका एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन, और आपका एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट पीरियड है, सपोज 20 दिन का एग्रीमेंट पीरियड है तो 20 दिन, 30 दिन का तो 30 दिन, 40 दिन का तो 40 दिन, 45 दिन या उससे ज्यादा 45, 60, 90, 180, 120, इन ऑल दैट केसेस 45 डेज के अंदर पेमेंट आपको करना है। यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, सपोज अगस्त महीने में परचेज किया है, तो आपको 31 मार्च से पहले पे कर देना है। जो भी पेमेंट है यदि आप 31 मार्च से पहले पे कर दो, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कट ऑफ डेट क्या है कि यदि आपने 15 फरवरी के बाद एग्रीमेंट वाले परचेज या सर्विसेज लिए हैं जिसमें आपको 45 दिन का टाइम है, या 15 मार्च के बाद जिसमें आपके कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपने परचेज या सर्विसेज लिए हैं, उनके पेमेंट्स आपको जिस दिन आपने परचेज किया है या सर्विसेज ली है उस दिन से आपको दो डेट विल एक्सटेंड बियॉन्ड 31 मार्च, अप्रैल या मई, जो भी डेट आ रही है अप्रैल मई 2024 में उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर पेमेंट करना होगा। यदि पेमेंट नहीं हुआ तो भी आपका एक्सपेंस असेसमेंट ईयर 24-25 में, मार्च 24 के लिए अलाउड नहीं होगा, आपके इनकम में जुड़ जाएगा। और जब आप पे करोगे तो नेक्स्ट ईयर में, जब भी आप पे करोगे, जिस साल में आप पे करोगे उस साल में आपको अलाउड होगा। तो यदि आपने कॉन्सिक्वेंस इफ नॉट पेड विद इन टाइम, यदि आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो आपको पेमेंट, वो जो एक्सपेंस है उससे रिलेटेड, वो नहीं अलाउ होगा। अब कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि सपोज मैंने 1 करोड़ की गुड्स खरीदी और उस पर 18 लाख का सर्विस टैक्स, जीएसटी है सॉरी, तो टोटल बिल मेरा 1 करोड़ 18 लाख रुपए का है। यदि मैंने 50 लाख का पेमेंट किया तो मुझे कितना डिसअलाउ होगा? तो आपको जो डिसअलाउ होगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा। सबसे पहले तो जीएसटी कंपोनेंट पे नहीं होगा 18 लाख पे, बट यदि आपका जो सप्लायर है, जो आपका गुड्स सर्वर, जिसने, वो बोलेगा कि नहीं मैं आपने मेरे को 50 लाख दिया, मैं पहले 18 लाख मेरे जीएसटी में एडजस्ट करता हूँ, और आपका 32 लाख रुपया मैं आपके गुड्स के या सर्विसेज के सामने एडजस्ट करता हूँ, तो आपको 32 लाख मिलेगा। बट बेसिकली लॉ ये है कि यहाँ पर जो डिसअलाउंस होगा दैट विल बी ऑफ, क्योंकि हम लोग सब एक्सक्लूसिव मेथड फॉलो करते हैं, तो 1 करोड़ का होगा, 18 लाख का नहीं होगा। 18 लाख का यदि डिसअलाउंस होगा भी तो 43B में नॉट पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह, वहां पे प्रोविजन देखना पड़ेगा कि आपका इनपुट रेट है या नहीं। पार्ट पेमेंट किया तो पार्ट अलाउड होगा, पार्ट नहीं होगा। यदि कोई पेमेंट किसी पार्टी का 1 साल से भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, किसी से हमने 2021 में गुड्स लिए थे, हमारा अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है, हमने पेमेंट नहीं किया, या मार्च 23 का भी बाकी है, मतलब बिफोर 1 अप्रैल 23 से पहले का कोई भी बिल का पेमेंट बाकी है, तो उसका भी पेमेंट आपको अभी नहीं करना है। मतलब इस प्रोविजन के अंदर वो नहीं आएगा, पेमेंट तो आपको करनी ही है, आपकी लाइबिलिटी है, आपको पेमेंट करना, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, बट दैट विल नॉट बी कवर्ड इन 43B स्मॉल h। ओनली जो आपने गुड्स या सर्विसेज अप्रैल 23 से मार्च 24 के बीच में ली हैं, इस साल के लिए वो प्रोविजंस लागू होगा। अगले साल फिर वापस अलग सिचुएशन आएगी।
So prior to April 23 के पेमेंट्स इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है प्रायर टू अप्रैल 23 वो 43BH में कवर नहीं होगा। देन यदि आप 44AD 44A या 44ADA में आते हैं, मतलब आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है इस साल, पहले जो 44AD जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए होता था उनको 44AD का बेनिफिट मिलता था। इस साल जिनका 3 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है वो लोग भी 44AD में बेनिफिट ले सकते हैं बाय डिक्लेयरिंग 6% ऑफ चेक पेमेंट्स और 8% ऑफ अदर पेमेंट्स। तो इस साल यदि आप 44AD का बेनिफिट लेते हो, आप 44AD में कवर होते हो, या 44AE जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, या जो प्रोफेशनल्स 44ADA में आते हैं जिनका प्रोफेशनल इनकम पहले 50 लाख था लिमिट, अभी 75 लाख लिमिट हो जाएगा। तो जो लोग भी प्रोफेशनल्स हैं जो 75 लाख के अंडर में कवर होते हैं ये, और अपना 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करके 44ADA को चूज करते हैं या 44AD को चूज करते हैं, 3 करोड़ से कम टर्नओवर वाले 6% या 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, उन लोगों को 43BH नहीं लगेगा, बिकॉज 44AD बोलते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजंस इन दैट, तो 43B नहीं लागू होगा, 43BH नहीं लागू होगा। अभी सपोज कोई ट्रेडर है जो 44AD का बेनिफिट ले रहा है, सॉरी कोई मैन्युफैक्चरर है 44AD का बेनिफिट ले रहा है, उसके टर्नओवर 33 करोड़ से कम है, वो अपने जो भी पर्सन है जिसको उसने गुड्स सप्लाई किया उससे पेमेंट क्लेम कर सकता है। यस, वो पेमेंट क्लेम करेगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर पर्सन को उसने सर्विस दी है, जिस पर्सन को उसने गुड सप्लाई की है, वो रजिस्टर नहीं है 44AD में। तो यदि कोई ट्रेडर सॉरी कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर 44AD में कवर्ड है, बट उसने अपने आप को MSME में रजिस्टर किया हुआ है और उसने गुड्स सर्विसेज सप्लाई की है थ्रू माइक्रो स्मॉल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के अंडर, उसको पेमेंट लेने का इंटाइटलमेंट रहेगा 43BH में, बट उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी एज रिगार्ड 43BH के पेमेंट। तो अब हम क्या करें? अब हमारी जो समझ में आ गया लॉ, यदि मैं सेलर हूं या सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं क्या करूं? तो सबसे पहले यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, सेलर हैं, आपने रजिस्टर नहीं किया उद्यम में, तो आप अब रजिस्टर कर लीजिए। और लेकिन आप अब रजिस्टर करेंगे तो आज के बाद आप जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप उद्यम में ऑलरेडी रजिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर साल रजिस्ट्रेशन अपडेट करना होगा। एवरी ईयर यू टू रजिस्टर एवरी ईयर। क्यों एवरी ईयर आपको अपडेट करना है? मतलब सिंपली रजिस्ट्रेशन वापस नहीं, उद्यम में बहुत सिंपल फॉर्मेलिटी है, आपको अपने टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स देनी है। क्योंकि यदि आपका पहले था कि एक बार रजिस्टर कर लिया तो जिंदगी भर रजिस्टर वापस कुछ नहीं करना है। अब इसलिए कि वो आपका क्लासिफिकेशन डिसाइड करना चाहते हैं कि आप माइक्रो में हैं, स्मॉल में हैं, मीडियम में हैं, या आप बाहर निकलिए। तो एवरी ईयर गवर्नमेंट वांट टू सी आपका टर्नओवर कितना है, आपके इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, तो इसके लिए रजिस्टर आप एवरी ईयर अपडेट करना जरूरी है। फिर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रिंट करना चाहिए। आपकी जो भी बिल्स हैं, बिल्स के ऊपर आप प्रिंट कीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, GST नंबर डालते हैं, पैन नंबर डालते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालते हैं, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हम अपने बिल पे नहीं डालते। तो आपका जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है या आपने जिसको गुड्स बेची है, वो लोग को कैसे पता चलेगा कि आप उद्यम में रजिस्टर हैं कि नहीं? तो आप अपने बिल में, इनवॉइस में, लेटरेट्स में, इसमें आपको डालना चाहिए। ऐसा रिक्वायरमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं। तो जो लोग मतलब अभी आपको अपने जो बिल्स हैं वो बिल्स में उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना चाहिए।
लेटर हेड्स वगैरह पे लिखें तो और बेटर है, ताकि आपके जो भी रेसिपिएंट हैं जिनको आपने गुड सप्लाई की सर्विसेज दी हैं, उन लोगों को पता चल जाए कि आप उद्यम में रजिस्टर हैं, उनको आपको टाइमली पेमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपने कस्टमर या क्लाइंट है उनको आप रजिस्ट्रेशन नंबर इन्फॉर्म कर दीजिए, आप ईमेल भेज दीजिए, ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए कि वो विजय सिंघल जी काइंडली आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, सो आप अपने कस्टमर को थ्रू ईमेल, कस्टमर जो भी क्लाइंट है उनको ईमेल से आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप उद्यम में रजिस्टर हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है पेमेंट की? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कस्टम है कि भी ठीक है आप 2 महीने में पेमेंट करोगे तो चलेगा, या आप नॉर्मली हम बिल्स पे बहुत बार नहीं लिखते कि हमने कितना पीरियड क्रेडिट दिया है। तो आपने यदि पीरियड नहीं लिखा और आपकी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई तो आपके रेसिपिएंट ऑफ सर्विस या गुड्स को 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी इंटेंशन ये नहीं है। तो आप बिल में लिखिए कि पेमेंट ड्यू विद इन सो मच टाइम। वो लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए कि आपके बिल पे कि आपका पेमेंट कितने दिन में ड्यू होता है, सो दैट दैट एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। आप बिल में लिखिए 15 दिन में पेमेंट करना है, 30 दिन में करना है, 40 दिन में करना है, 60 दिन में करना है। बट आपने जो 60 दिन लिखा तो 43B(H) पर्पज के लिए 45 डेज ही, या एमएसएमई एक्ट के लिए 45 डेज ही काउंट होगा। बट हमको टर्म्स ऑफ पेमेंट बिल में लिखना चाहिए, वो बेटर रहेगा। यदि सपोज हमने बिल नहीं लिखा और ऑलरेडी हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक ईमेल से कंफर्म कर सकते हैं कि हम आपको जो भी माल सप्लाई कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, हम उसके बिल रेज कर रहे हैं, और हम आपको इस ईमेल से या इस एग्रीमेंट से, इस कम्युनिकेशन से कंफर्म कर रहे हैं कि आपका पेमेंट लायबिलिटीज कितने दिन का है। यदि हम बायर हैं, हमने सर्विसेज ली है, हमने गुड्स परचेज किए हैं, हमारी लायबिलिटी आ गई 31 मार्च तक पे करने की, या लास्ट पीरियड में हमने जो परचेजेस किए हैं, तो हमारी एक्सपेंस अलाउ हो, गुड्स परचेज किया तो परचेज अलाउड हो, तो हमारी क्या क्या हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करने की 43B(H) के लिए। तो आप सबसे पहले तो उसका बिल देखिए, बिल पे उसने उद्यम नंबर लिखा है क्या, या उसने कोई ईमेल भेजी है क्या, व्हाट्सएप किया है क्या, और उसमें उसने आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर किसी तरह से आपको इन्फॉर्म किया है क्या। यदि आपको उसने बिल में दे दिया या ऑलरेडी कम्युनिकेशन में दे दिया उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका एक पार्ट ऑफ काम हो गया। बट इफ इज नॉट गिवन, देन व्हाट टू डू? देन यू राइट टू देम थ्रू ईमेल कि प्लीज provide us your Udyam registration number. Are you registered in MSME? If yes, please share us your Udyam registration number. तो आपके जो भी सप्लायर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सबको आप ईमेल भेजिए। आपने ईमेल भेजा, ईमेल का रिप्लाई नहीं आया, देन सेंड ए सेकेंड रिमाइंडर और थर्ड रिमाइंडर स्टेटिंग दैट कि हमने आपको पहले ईमेल भेजा था, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, आपने हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया। यदि इस ईमेल का आपने 7 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वी विल एज्यूम दैट यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर MSME। सो वो ईमेल भी भेजना जरूरी है। तो नहीं तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेंगे कि आपने पेमेंट नहीं किया, आप बोलोगे मुझे मालूम ही नहीं था, तो आपने क्या स्टेप लिया, बिकॉज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स। इवन एज ए ऑडिटर हम लोग भी आपसे बात, जब भी क्रेडिटर्स की लिस्ट चेक करेंगे तो हम बोलेंगे कि आपने क्या कोशिश की थी मांगने की। तो यू मस्ट आस्क योर सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर थ्रू ईमेल। आप बोलेंगे मैंने व्हाट्सएप भेजा था, फोन करके पूछा था, और उसने आपको फोन पे या व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने नहीं दिया तो आपके पास में कोई एविडेंस क्रिएट नहीं हो रही कि आपने मांगा था और उसने नहीं दिया। एविडेंस क्रिएट होगी ईमेल भेजने से ही। इसलिए एविडेंस क्रिएट करने के लिए जो आपको ईमेल उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है,
तो आपको ईमेल भेज के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि आपको सपोज मार्च तक नहीं मालूम पड़ा, आपने पेमेंट नहीं किए, और बाद में अप्रैल में, मई में या जून में आपको पता चला, जब भी टाइम निकल गया, तो आप बोलोगे मैं क्या करूँ, मुझे तो पता नहीं था। तो यू मस्ट क्रिएट एविडेंस कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ऑडिटर आपको परेशान नहीं करे। अब आपको जब उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम पड़ गया, साइलेंट मोड पर कर देना। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम पड़ गया, तो आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उद्यम की, वहां पे जाके ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखेंगे तो वहां पे आपको दो तीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको वहां पे ये मिलेगा कि वेदर इट इज रजिस्टर्ड माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो आप वहां पे जाके देखेंगे तो ये रजिस्टर आपका जो सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ये कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर है, माइक्रो में है, स्मॉल में है या मीडियम में है, ये एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये भी मिलेगी वहां पे जाके कि वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है। पहले आपने उसकी कैटेगरी देखी कि माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। मीडियम है तो आपको 43B के लिए उसको इग्नोर कर देना, 43B नहीं लगेगा। फिर आपने देखा कि माइक्रो या स्मॉल में रजिस्टर है, तो फिर आप देखिए कि वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है। यदि वो ट्रेडर है तो फिर आपको वापस 43BH के लिए उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओनली इफ इट इज माइक्रो, स्मॉल, registered, and only if he is manufacturer or service provider, then only you are responsible for 43BH to look into the payment etc. तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेके चेक करना है, वहां पे जाके आपको सब मिलेगा कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कौन से में ही रजिस्टर है। कई बार रजिस्ट्रेशन नंबर गलत दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत दिया तो भी आपको पता, क्योंकि उनको लगता है मेरा पेमेंट जल्दी आ जाएगा, मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूँ। आप वेरीफाई कीजिए वो रजिस्ट्रेशन नंबर से उस कंपनी के नाम से वो रजिस्टर है कि नहीं है। रजिस्टर का माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, फिर वो मैन्युफैक्चरर है कि सर्विस प्रोवाइडर है कि ट्रेडर है, वो आप वेरीफाई कीजिए। फिर आप ये भी देखिए कि उसका वैलिडिटी पीरियड क्या है। समझो उसने रजिस्टर किया था 22 में, लेकिन 23 में उसने रजिस्टर नहीं किया, तो भी आप वो वैलिडिटी नहीं है उसकी, तो आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। इट मस्ट बी वैलिड जिस दिन उसने आपको गुड्स प्रोवाइड की या सर्विसेज रेंडर की, उस पर्टिकुलर डे को वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड होना चाहिए, तो ही ये 43BH का प्रोविजंस लागू होगा। फिर आप देखिए एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट टर्म्स क्या है। आपने उनके साथ कोई ईमेल से या उनके बिल पे आपके परचेस आपने जो दिया था ऑर्डर, उसमें कहीं पे भी आपने यदि कुछ भी नहीं लिखा, आप बोलोगे नहीं मेरा तो नॉर्मल आदत है, हम तो 2 महीने से पे करते हैं, मेरा पिछला 5 साल का रिकॉर्ड देख लो, नहीं चलेगा। देन एग्रीमेंट has to be in writing, because if you look into that, agreement has to be in writing. Writing का मतलब it must be either written on bill, must be written on some sort of email, maybe written on while you place the order, purchase order आपने place किया तब, it must be in writing. यदि आपका oral है, custom है, practice है, तो नहीं चलेगा। MSMED Act says very clearly agreement in writing, वो payment terms होना चाहिए। यदि नहीं है तो 15 दिन का कंडीशन लग जाता है, इवन दो यू हैव ऑलवेज बीन पेइंग इन 45 डेज। यदि ये सब आपने देख लिया कि वो रजिस्ट्रेशन है, ही फॉल्स इन माइक्रो स्मॉल कैटेगरी, ही इज ए मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, उसका आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट का पीरियड आपने देख लिया, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जब आपकी हम लोग ऑडिट करेंगे तब हम आपसे ये डिटेल भी पूछेंगे कि आपके जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे, वो सारे के सारे हम एक एक करके चेक करेंगे कि वेदर दे फॉल इन 43BH और नॉट। बिकॉज हमारी टैक्स ऑडिट में वो रिक्वायरमेंट आने वाली है कि हमको इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को कि आपने कौन से पेमेंट 43BH के हिसाब से नहीं किए, और जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इनकम में ऐड करने हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस। कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स में ले सकते हैं।
Thank you very much for listening. Thank you for being with us. I'll start. Yes, sir. It's all yours. जो भी queries हैं. संजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं.